Okay, friends, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family members, your relative, your friends, your parents, all are safe. And you are enjoying this new way of learning, this new kind of situation. Friends, on the last lecture, I had discussed the dimensional formula of different physical quantities. And I hope you had just prepared the dimensional formula. I had arranged a small exam of the dimensional formula as well. After completion of this lecture, you will get a paper of exam correspondent to the only the dimensional formula. MCQ based exam is there. You need to only write down the options and answers. So after completing of this lecture, I'm going to send you that paper. So Mr. Naman is there? Yes, sir. Yeah, Naman, you had just gone through the video sessions and that dimensional formula. Yes, sir. Okay. So whatever we are going today, it is based on the dimensional formula. So I hope you had just memorized the dimensional formula of the different at 34 or 33 quantities. Okay. Yes, sir. Excuse me. Okay, Nisarg is there? Yes, sir. Nisarg, you had gone through the dimensional formulas? Yes. Okay, fine. So we'll start our session. Friends, on the last lecture, we had discussed the dimensional formula. And the today's topic is a dimensional analysis. Now, as I told you that the today's session is based on the dimensional analysis, then the question must arise that what is dimensional analysis? So question should arise that what is dimensional analysis? Are you able to see what I am writing here? Yes. Okay, Yes. fine. Okay. So the meaning of dimensional analysis is it is the method or process of solving some questions, by help of dimensional formula is called a dimensional analysis. Now the question is which kind of questions we are talking about, I am talking about. So I repeat, what is a dimensional analysis? So it is just a method of solving some questions of physics by the help of the dimensional formula. So by the application of dimensional formula, now we are going to solve some questions. Now the question is that which question I'm talking about. Okay, so there are three applications of the dimensional analysis. That means we can solve three kind of questions by the help of the dimensional formula. Number one, we can get the relation. We can get the relation between the two units of a different system of the same quantity. I repeat, we can get the relation between the unit in the different unit system of the same quantity. Okay, Priyanshu, Yes, sir. you can mute yourself. I find some noise over there.
So okay, just let me mute you. Okay, so three questions we are going to discuss in the today's in the dimensional analysis. So there are three applications of the dimensional analysis. Number one, the very first question, very first problem, that is, we are going to derive the relation between the different units of a same physical quantity. I'm giving you the example. Perhaps you know the MKS unit. MKS unit of a force is a Newton, and a CGS unit of the force is a dyne. But anybody of you knows the relation between the Newton and dyne? किसी को पता है कि न्यूटन एंड डाइन के बीच में रिलेशन क्या है? न्यूटन is the MKS unit of a force and dyne is the CGS unit of the force. 10 raised to power 5. Yeah, वो कौन बोला? Priyanshu. Priyanshu. Priyanshu given the right answer. That is the relation. But Priyanshu, you know, the MKS unit of the work done is a joule and CGS unit of the work done is a erg. So you know what is the relation between the 1 joule equals to how many erg? No, sir. Then no. Yeah, so that is the thing. So we can get the relation between the MKS unit and the CGS unit of any of the physical quantity. कोई भी क्वांटिटी के लिए हम MKS unit and CGS unit के बीच में रिलेशन ला सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं by the help of the dimensional formula. So that is what is the first application of the dimensional analysis. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा है कि डायमेंशनल एनालिसिस आज हमको पढ़ना है. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि व्हाट इज द डायमेंशनल एनालिसिस. तो मैंने बताया कि भाई इट इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑफ द फिजिक्स बाय द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला. तो अब क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फार्मूलाज. तो मैंने बताया कि जो पहला एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का वो ऐसा है कि हम कोई भी एक क्वांटिटी को पकड़ लेंगे और उसके MKS एंड CGS यूनिट के बीच में हम रिलेशन डिराइव कर सकते हैं. हाँ, प्रियांशु ने बताया कि भाई न्यूटन एंड डायन उसको पता था कि भाई 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डायन, but he don't know about the relation of the MKS and CGS for the work. So we can derive the relation of MKS and CGS unit for any physical quantity. Now the question is that how we are able to solve this, how we are able to derive the relation. So I'm going to give that method. I'm going to discuss this thing. So for that, let me share a whiteboard on your screen. So I'm going to share the whiteboard. So whiteboard is on your mobile. So क्या आपके मोबाइल में अभी whiteboard आ गया है? Yes. Okay. So क्वेश्चन से ही एक स्टार्ट करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि MKS unit of a force is equals to how many times CGS unit of a force. You can also ask, that question can alternatively can be asked in this manner: 1 Newton is equals to how many dyne? ऐसा भी पूछ सकते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं. सो सबसे पहले तो आपको जिस क्वांटिटी के बारे में पूछा हुआ है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. द सॉल्यूशन. So very first you need to write down the dimensional formula of the force. तो dimensional formula of a force. देखो आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में बता सकते हो. तो कहीं पे भी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा सिंबल दिख जाए आपको,
स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एफ, तो इसका मीनिंग क्या करना है आपको? इसका मीनिंग आपको ये करना है कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट इज शोइंग इट इज द सिंबल ऑफ अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, सपोज के स्क्वायर ब्रैकेट ए है, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी ए, तो दैट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टू शो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द गिवन क्वांटिटी। सो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वो अब हम यूज करेंगे नाउ एंड onwards in this chapter. So whenever you show somewhere a square bracket of any quantity, तो आपको मतलब ऐसा, मतलब उसका मतलब ऐसा होगा कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वहां पे लिखना है। ओके चलो, निसर्ग है वहां पे, निसर्ग Yes, sir. बता दो निसर्ग, क्या होगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला? पता है आपको? अच्छा, सबा इज देयर? Yes, तो आपको पता है सबा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला? yes. M1, ओके L1, ओके T minus 2. ओके, सो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। देखो, अगर आपको यहाँ पे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ही पता नहीं है सपोज, तो ये मेथड आपके लिए काम का नहीं है। सो दैट इज व्हाई आई एम particularly continuously telling you that you must prepare the dimensional formula. मेरा जो नोट्स है, मैंने आपको एक नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है, सेकंड चैप्टर का नोट्स, आई होप के सबको मिल गया होगा। आपके मोबाइल के अंदर मैंने ये सेकंड चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है। वैसे फिजिकली मेरे इंस्टीट्यूट में से आपको नोट्स कलेक्ट करना है एक आध दिन के बाद, वो जेरोक्स में अभी मैंने दिया हुआ है, तो आपको फिजिकली भी वो मिल जाएगा। अब मेरे इंस्टीट्यूट से आपको कलेक्ट करना होगा, तो बट उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कब लेना है। बट अभी आपके मोबाइल में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसमें लास्ट में कुछ पेज नंबर आई डोंट नो 42 या 43 में ये पूरा टेबल दिया हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला का। वैसे मैंने तो बहुत सारे, मेरे जो नोट्स है वहां पे आप देखोगे तो मोर देन 100 क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है, बट एक टेबल ऐसा दिया हुआ है जहां पे लिखा हुआ है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द बेसिक क्वांटिटीज। तो वैसे बहुत सारे फिजिक्स के अंदर बहुत सारे क्वांटिटीज आप पढ़ने वाले हो, बट अभी हमारे लिए जो सेकंड चैप्टर के लिए जो काम का है वो जस्ट 30 या 34 क्वांटिटीज ही है। उसका अलग से मैंने एक टेबल दिया हुआ है। स्टूडेंट्स मस्ट प्रिपेयर दैट एटलीस्ट दैट 32 क्वांटिटीज। तो ये हमारे सेकंड चैप्टर के लिए वो उसका काम हो जाएगा। बाकी जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे आगे, तो बाकी बहुत सारे अलग अलग क्वांटिटीज आने वाले हैं। सो एट दैट टाइम उसके डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम बाद में देखेंगे, अभी उसका जरूरत नहीं। मैंने टेबल वैसे प्रोवाइड किया हुआ है सेकंड चैप्टर के नोट्स में, बट आपको अभी उसको लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको कितना डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लर्न बाय हार्ट करने का है? ओनली दैट 32 क्वांटिटीज। तो फोर्स का तो वैसे भी मैंने आपको याद रखने का बोला था। कैसे याद रखने का बोला था? 1 1 1 2। या एग्जैक्टली। अब इतना खत्म होने के बाद आपको ऐसा लिखना है, एक साइड आपको लिखना है MKS सिस्टम, और उसके अपोजिट साइड आपको लिखना है CGS सिस्टम। ओके, इतना करने के बाद आपको MLT यहां पे लिखना है, MLT यहां पे भी लिखना है। चलो, M जो है वो मास रिप्रेजेंट करता है। मास का यूनिट क्या होता है MKS सिस्टम में? तो सही माह है वहां पे, सही माह। Yes. बोलो, मास का यूनिट क्या होता है? Kilogram, kg. ओके, मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है MKS में। CGS में क्या होता है? सही माह, व्हाट इज द Yes. यूनिट ऑफ द मास इन CGS सिस्टम? Kg. नहीं, CGS की बात है। CGS का मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ऑब्वियसली क्या होगा मास का यूनिट? Centimeter. मास की बात कर रहा हूँ।
So CGS unit of mass is a gram. Okay. अब लेंथ के बारे में देखते हैं. लेट मी म्यूट. अब फ्रेंड्स आप आंसर देने के बाद थोड़ा म्यूट हो जाएगा, बिकॉज क्या होता है कि अगर म्यूट नहीं हो गया आप तो दूसरे लोगों को डिस्टरबेंस आएगा. चलो, लेंथ का एमकेएस यूनिट जो है वो मीटर है एंड सीजीएस यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है. टाइम का एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, टाइम का एमकेएस भी सेकंड है, सीजीएस भी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस भी सेकंड ही है. तो निसर्ग, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम? निसर्ग, Yes, sir. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम? आर यू श्योर? No, no. नो. अच्छा, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स? 1000 gram. या सो अगर इसको कंपेयर करना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1000, मतलब 10 रेज़ टू पावर 3. तो 1 kg इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम. चलो निसर्ग, 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 100. वेरी गुड, 100 सेंटीमीटर. एंड 1 सेकंड इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकंड्स? 60. 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 60 सेकंड. क्या बोल रहे हो आप? No, no. 1 second equals to how many seconds? 1 second is equals to 1 second equals to how many seconds? 1. 1 ही होगा ऑब्वियसली. सो यहाँ पे 1 आएगा. बट अगर कुछ लिखना है आपको, अगर कुछ लिखना है तो आप 10 पावर 0 लिख सकते हो. किसी का भी 0 पावर 1 ही होता है. सो 1 सेकंड इक्वल 1 सेकंड, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर 10 रेज़ टू 0 ऐसा सोच सकते हो. तो ये जो टेबल है वो सभी क्वेश्चन में आएगा. मतलब आप कोई भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, आपको सीजीएस एंड एमकेएस का रिलेशन लाना है, तो कोई भी क्वेश्चन में ये टेबल तो आएगा ही आएगा. ये सब जगह पे, मतलब ये इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन में ये टेबल रहेगा. अब देखो, अब किसकी बात कर रहे हैं हम? फोर्स की बात कर रहे हैं. तो आपको क्या करना है कि एमकेएस साइड जो आपने लिखा हुआ है वहां पे आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, m1 l1 t minus 2. अब राइट साइड भी आपको क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट तो कर देना है, और आपको डायमेंशनल फॉर्मूला का जो पावर है 1 1 minus 2 वो भी लिखना है. बट करस्पॉन्डेंट टू द 1m इन mks, करस्पॉन्डेंट टू द 1m इन mks, हाउ मेनी m विल बी इन द cgs? cgs में कितने m हो गए? करस्पॉन्डेंट टू द 1m इन mks, हाउ मेनी m इन द cgs? 10 raised to 3. Yeah, 10 raised to 3 m will be there. Correspondent to the 1L in the MKS, how many L in the CGS? 10 is to 2. 10 raised to 2. And time तो वही का वही है, टाइम में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वही का वही रहेगा. Is that clear to you friends? Yes. चलो, अब आपको ये रूल्स पता है ना फ्रेंड्स? पावर का जो पावर होता है तो उसमें पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है. पावर का पावर तो पावर में मल्टीप्लिकेशन. एंड नंबर 2, अगर x रेज़ टू a इंटू x रेज़ टू b है तो आपको करना है x रेज़ टू a प्लस b. इज इट अंडरस्टूड? Yes. ओके. तो यहाँ पे 10 रेज़ टू 3 का 1 पावर, तो क्या होगा? 10 रेज़ टू 3 इंटू 1, तो 10 रेज़ टू 3 होगा m1. 10 रेज़ टू 2 पावर 1, तो 10 रेज़ टू 2 ही होगा, L1 हो जाएगा, एंड t माइनस 2. चलो अब मुझे बताओ 10 रेज़ टू 3 10 रेज़ टू 2, तो क्या होगा इसका? 10 raised to 5. वेरी गुड, 10 रेज़ टू 5, m1 L1 t माइनस 2, m1 L1 t माइनस 2. अब आपको यहाँ पे दोनों साइड से m1 L2 t माइनस 2 कैंसिल नहीं करना है. ये जो है वो MKS का फोर्स है और ये जो है वो CGS का फोर्स है. तो मतलब कंक्लूजन इज दैट यूनिट ऑफ अ फोर्स in MKS is equals to how much time the unit of the force in the CGS? 10 is to power 5. 10 raised to power 5. वैसे ये आंसर तो आपको पहले से ही पता था,
but this is the method to solve any kind of questions for any kind of quantities. So vice versa, I can say that 1 Newton is equals to 10 raised to 5 Dian. Dyne, not Dian. तो अब आपको पता चला ये न्यूटन कितना खतरनाक है. It is equivalent to 1 lakh Dian. ओके, सो क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? Yes. देखो एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं और उसके बाद मैं आपको 4-5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं. ओके, एक और क्वेश्चन मैं अभी आपको एक और क्वेश्चन एक ले लेते हैं तो आपका ये मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको. क्वेश्चन इज obtain the relation of MKS and CGS unit for the density. और वाइस वर्सा ऐसा भी पूछ सकते हैं कि MKS unit of density is equals to how much times CGS unit of density. और वाइस वर्सा ऐसा भी पूछ सकते हैं कि यूनिट ऑफ द डेंसिटी एज यू नो kg per meter cube. So 1 kg per meter cube equals to how many ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा भी पूछ सकते हैं. तो उसका सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमको? डायमेंशनल फॉर्मूला. तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो जिस क्वांटिटी के बारे में निकालना है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहला स्टेप डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. सो डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, चलो सना है वहां पे? सना, Yes. बोलो क्या लिखूं मैं? What? मुझे क्या लिखना चाहिए? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ. M1 ओके, फिर L minus 3 ओके T0. ओके फाइन. चलो इतना खत्म होने के बाद हम लिखेंगे MKS सिस्टम, यहां पे लिखेंगे CGS सिस्टम. MLT यहां पे भी लिखेंगे, MLT यहां पे भी लिखेंगे. मास इज इन द kg, लेंथ इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकंड इन द MKS. अब CGS में मास ग्राम में है, लेंथ सेंटीमीटर में है एंड टाइम सेकंड में है. तो करस्पॉन्डेंट टू द 1 m, हाउ मेनी m इन द CGS? 10 raised to 3, 10 raised to 2 and it is remains the 1 as it is, 10 raised to 0 लिख सकते हैं. अब क्या करना है आपको? ये जो टेबल है वो तो सब जगह पे वी हैव टू, दिस टेबल विल बी इन ईच केस. अब क्या लिखना है आपको? आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है डेंसिटी का, M1 L minus 3 T0. तो आपको राइट साइड भी वही करना है, 1 minus 3 and 0. चलो M के बदले क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे? 10 raised to 3. 10 raised to 12 and T as it is. चलो 10 raised to 3 power 1 तो 10 raised to 3 ही होगा. M1 10 raised to 2 power minus 3 तो वो क्या हो जाएगा? -6. -6 L raised to -3 and T power 0. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम 10 power 3 10 power -6 तो it will be comes out to be a -3 power -3. M1 L minus 3 T0, M1 L minus 3 T0.
तो फ्रेंड्स अभी आपको अच्छा सहीमा, आर यू नॉट एबल टू हियर मी? सहीमा, आपको मेरा आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो एवरीबडी? एम आई ऑडिएबल टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes. ओके, तो देखो कभी अगर आप मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हो तो इसके दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो मेरे यहाँ से इंटरनेट का कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है या आपके वहां पे। तो आप प्लीज फ्रेंड्स ऐसी जगह पे ये लेक्चर अटेंड करना जहां पे आपका इंटरनेट का कनेक्टिविटी सही से आ रहा हो और आपके मोबाइल का डेटा का मतलब कंप्लीटली यूज ना हुआ हो। और दूसरे एप्लीकेशन को मीनवाइल आप जब लेक्चर पढ़ते हो तो दूसरे एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन को मतलब बंद कर दो, तो उसका इंटरनेट का यूज मतलब इसी एप्लीकेशन में होगा। तो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम एक्चुअली। मेरे बहुत सारे लेक्चर्स चलते हैं तो किसी को मतलब ये प्रॉब्लम नहीं आता, तो मतलब ये सब 3-4 चीज ध्यान रखना, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो अब इसको कट नहीं करना है, क्या सोचना है? ऐसा सोचना है कि डेंसिटी इन MKS, और MKS यूनिट of a density is equals to 10 raised to minus 3 times CGS unit of a density। तो मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? 1 kg per meter cube is equals to 10 raised to minus 3 gram per centimeter cube। So this is the answer। तो क्या फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे? इट इज वेरी सिंपल थिंग। क्या ये कर पाओगे आप? Yes, sir. Yes. तो अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला है तो डेफिनेटली आप उसके MKS एंड CGS यूनिट के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैं 4-5 क्वांटिटी को आपको एज ए होमवर्क में दे रहा हूं। तो सो आपके होमवर्क में मैं कुछ क्वांटिटीज यहां पे लिख रहा हूं। सो आपको एक वर्क का निकालना है रिलेशन, वर्क डन का। आपको सरफेस टेंशन का निकालना है। आपको पावर का निकालना है, पावर के लिए। आपको प्रेशर के लिए फाइंड करना है। एंड नंबर 5 आपको करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो ये जो 5 क्वांटिटी है तो उसके आपको MKS एंड CGS यूनिट के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। ओके फ्रेंड्स, क्या ये आप होमवर्क में कर पाओगे? Yes, sir. कैन इट बी गिवन टू द होमवर्क? Yes. ओके, Yes. so that is what is the first application of the dimensional analysis। ये पहला एप्लीकेशन खत्म हुआ। Now we are going to discuss the second application of the dimensional analysis। मैंने आपको बताया कि 3 एप्लीकेशन है, उसमें एक का खत्म हुआ। दूसरा, we can check the dimensional validity of the given equation। I repeat, we can check the dimensional validity of a given equation by the help of the dimensional formula। अब डायमेंशनल वैलिडिटी का मतलब क्या है कि कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो क्या वो सही है या गलत है, वो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई भी इक्वेशन किसी ने आपको दिया हुआ है और आपको डाउट है कि वो इक्वेशन एक्चुअली सही है या गलत है, तो वो डाउट आप क्लियर कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे, अभी मैं बताऊंगा। तो अभी इसको मैं निकाल रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं। इसके फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगे। इसके फोटोग्राफ्स आपको आपके मोबाइल, आपके व्हाट्सएप में ये फोटोग्राफ, ये जो भी लिखा है उसके फोटोग्राफ को मिल जाएगा। इसका पूरा ये यूट्यूब लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। अगर कुछ रिवीजन करना है तो यूट्यूब लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब लिंक मिल जाएगा ये लेक्चर का। थोड़े दिन के बाद विद इन 7 days मेरा एक खुद का एप्लीकेशन है, उसको लॉन्च तो मैंने कर दिया है,
बट फिर मेरे सारे लेक्चर्स जो आएंगे वो एप्लीकेशन में ही अपलोड होंगे। वो मतलब यूनिवर्स मतलब सबके लिए नहीं होगा। मतलब मेरे पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए ही वो अभी एप्लीकेशन के अंदर वो मैं अपलोड करूंगा। आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप ही उसको एक्सेस कर पाओगे। तो अभी तो मैं ये यूट्यूब में आपको दे दूंगा। तो सेकंड एप्लीकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड एप्लीकेशन जो है, मैंने आपको बताया कि वो डायमेंशनल वैलिडिटी चेक करना है। क्या है, अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, देखो फ्रेंड्स, फिजिक्स है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बट एक चीज है कि आपको ये पूरा सब्जेक्ट जो है ना, वो टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। रट्टा मारने का ये सब्जेक्ट नहीं है। जितना आप समझ के प्रिपेयर करोगे, उतना आपको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होगा। एंड जितना इंटरेस्ट डेवलप होगा, उतने आप उसके अंदर मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो पहली बात, कभी भी फिजिक्स में रट्टा मारना नहीं होता है। केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट नहीं है। मतलब ये इट इज नॉट लाइक 100% इंफॉर्मेटिव, इट इज नॉट लाइक दैट। ये पूरा समझ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको दो चीज करना है। एक तो आपको डे टू डे वर्क करना है। यहाँ पे जो भी मैंने करवाया, जो भी मैं करवाऊंगा, आपको उसको साथ साथ पे करना है। एंड सेकंड थिंग, आपको कंटिन्यूअसली सोचना है। कंटिन्यूअसली सोचते रहना है कि अभी नेक्स्ट मैं क्या बोलने वाला हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ऐसा कंटिन्यूअसली आपको सोचते रहना है एट द टाइम ऑफ लेक्चर। तो अभी जो चल रहा है टॉपिक इज चेक द डायमेंशनल वैलिडिटी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है, चेक dimensional validity of a formula f is equals to mv square by r। आपको ये दिया होगा कि where f is a force, m is a mass, v is a velocity and r is a radius। ये आपको दिया होगा। ओके, इसको मुझे डायमेंशनली चेक करना है कि ये वैलिड है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनल वैलिड होता, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड राइट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता। मतलब हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, राइट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। उसके बाद अगर दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है, तो ऐसा कहना चाहिए कि इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो वेल सी, लेट अस सी। सहीमा इज देयर? सहीमा, सहीमा, क्या सहीमा है वहां पे? Yes, yes, नाउ आर यू एबल टू हियर मी? yes. Okay, dimensional formula of a left hand side. So that is the dimensional formula of the force. इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड f है एंड वो फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? 1, 1. m1 l1 t-2। चलो लेफ्ट हैंड साइड का तो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स हम? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द राइट हैंड साइड, that is equals to the dimensional formula of mv square by r। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर m, डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर r।
चलो फ्रेंड्स, मुझे ये बताओ कि m क्या है? मास है, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? kg. 10. अरे डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ मैं। m1. M1 S0 m1 T0 जीरो T0. जीरो वाले टर्म्स नहीं लिखे तो चलेंगे, जीरो जीरो वाले M1 टर्म्स ना, तो m1 ओनली m1 यू कैन राइट। ओके, चलो वेलोसिटी। चलो निसर्ग है वहां पे, निसर्ग निसर्ग है वहां पे, निसर्ग Yes, sir. निसर्ग आप बता पाओगे वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला? Velocity. Upon. ओके, प्रियांशु हाँ सर. बोलो। वेलोसिटी का ना m0l1t-1. ओके, सो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो m0 l1 l1. t-1 अपॉन r इज अ रेडियस। Meter. रेडियस, हाँ मीटर में ही मेजर करते हैं रेडियस को, तो उसका l1 ही होगा। तो फाइनली ये हो जाएगा m1। अब ये v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर का मतलब यहाँ पे मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो l1 का स्क्वायर फ्रेंड्स l2t-. हाँ उसका L2 होगा एंड T-2 होगा न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में एक L है, तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो मिलेगा M1 L2 अपॉन L1, तो L1 बचेगा एंड T-2 भी बचेगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे फाइनली मिलेगा M1 L1 एंड T-2। तो मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला यू कैन सी दैट इट इज कम्स आउट टू बी अ सेम। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? फ्रॉम अ रिजल्ट 1 and 2, from the result 1 and 2 we can say that the given equation, बोलो क्या लिखूं? बोलो क्या लिखूं? डायमेंशनली valid. Is that clear friends? Yes sir. Yes sir चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। Check dimensionally validity of equation k is equals to half mv cube, half mv cube, where जो k है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए है, m जो है वो मास के लिए है, एंड v जो है वो वेलोसिटी के लिए है। ओके तो वैसे आपको पता है कि ये कोई क्या आंसर क्या आने वाला है? ये वैलिड होगा कि नहीं होगा? Not valid. नॉट वैलिड, आपको पहले से ही पता है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? half mv square. हाँ, तो वो तो आपको इसका तो आंसर पहले से ही पता है, तो भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
dimensional formula of a Left hand side. left hand side, and that is equals to the dimensional formula kinetic energy. देखो याद करो फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारे जो एनर्जीज है उसका यूनिट जूल ही है. was measured in the terms of joule, सारे का जूल ही है. एंड जूल के लिए हमको क्या करना होता है? 122. 122. चलो इक्वेशन नंबर 1. अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द राइट हैंड साइड, that is equals to half mv cube. तो हाफ का डायमेंशनल फॉर्मूला, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, वेलोसिटी का क्यूब. अब फ्रेंड्स हाफ जो है ना वो एक नंबर है. हाफ इज नॉट शोइंग एनी क्वांटिटी, वो जस्ट एक नंबर है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. अगर फिजिकल क्वांटिटी होती तो उसका यूनिट होता, बट हाफ इज नॉट एनी फिजिकल क्वांटिटी, सो इसका कोई यूनिट नहीं होगा. हाफ जो है इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर, इट इज नॉट एनी फिजिकल क्वांटिटी, एंड हेंस देयर इज नो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द हाफ. तो फ्रेंड्स हाफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए मुझे? 0. 0 0 0, m0 l0 t0. एंड अगर जीरो वाले टर्म्स ना लिखे तो भी चलेगा. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या सीखना मिला कि अगर कोई इक्वेशन के अंदर कोई नंबर आता है, कोई वैल्यू आती है विच इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो अगर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? 0 0 0. आई रिपीट, अगर कोई भी इक्वेशन के अंदर कोई ऐसे न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, जैसे हाफ है, जैसे पाई है, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसके अंदर 4/3 पाई आएगा. जैसे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है तो उसके अंदर पाई आता है. तो ऐसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको क्या लिखना होता है? 0 0 0 लिखना होता है. इज दैट क्लियर टू यू? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? हाँ के ना तो बोल दो. सर आवाज नहीं आ रहा. हाँ अभी आर यू एबल टू हियर मी? Yes. Yes. ओके, सो क्या हुआ था कि ये मोबाइल से इंटरनेट चालू है, तो किसी का फोन आ गया था. तो ऐसा कभी होगा कि किसी का फोन आएगा ना, तो मतलब एक आध मिनट के लिए वो सब निकल, मतलब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा. तो हम डिस्कस कर रहे थे, हम जो डिस्कस कर रहे थे, ओके या सो आपके मोबाइल में वापस से ये आ गया, मतलब ये व्हाइट बोर्ड आ गया. Yes. ओके, Yes. तो हम डिस्कस कर रहे थे k इज इक्वल्स टू 1/2 mv क्यूब का. तो k का हमने फाइंड किया था, तो दैट वाज अ m1 l2 t-2. So that is the equation number 1. अब dimensional formula of the right hand side is a half mv square. That is the dimensional formula of a half, dimensional formula of a m, dimensional formula of a v cube. Okay. Okay. अब मैंने ये बताया कि हाफ का क्या लेना होता है? 0. हाँ, कोई भी इक्वेशन के अंदर ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, कोई ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज क्या कंसीडर करना होता है? 0 ही कंसीडर करना होता है. 0 0 0 तो ना लिखो तो चलेगा. चलो m तो है, वो मास है, तो मास का 1 होगा. अब वेलोसिटी का आपको अभी मैंने बताया मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ L1 t-1 का क्यूब हो जाएगा. तो m1 L3 t-3
इक्वेशन नंबर 2। तो क्या फ्रेंड्स इक्वेशन 1 एंड 2 करेक्ट है? No. No. इक्वेशन 1 एंड 2 आर नॉट आइडेंटिकल। तो इसका हुआ कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली नॉट वैलिड। Not valid. तो ऐसा कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज अ नॉट वैलिड। तो क्या फ्रेंड्स ये समझ में आया आपको? Yes. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes. Yes. ओके। सो वापस से एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ ट्रैक। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि इक्वेशन ऑफ periodic time is that t is equals to 2 pi root L by G. 2 pi root L by G, where L is a length and G is equals to gravitational acceleration. Okay. Then the question is check dimensional validity of equation. इसका डायमेंशनल वैलिडिटी चेक करना है। तो वापस से वही मेथड क्या करेंगे हम? सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द टी। टी क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। टी क्या है फ्रेंड्स? टी क्या है फ्रेंड्स? Periodic time. ओके, तो टी तो पीरियोडिक टाइम है। अब द पीरियोडिक टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? T1. ओके, सो m0 l0 t1। अब डायमेंशनल फॉर्मूला of a right hand side, that is equals to dimensional formula of a 2 pi root L by G, that is equals to dimensional formula of a 2 pi L by G का डायमेंशनल फॉर्मूला उसका हाफ। फ्रेंड्स आपको ये तो पता है ना कि अगर रूट एक्स है तो उसका मतलब उसका हाफ पावर होता है, हाँ सर। या तो रूट L by G का मतलब ऐसा हुआ कि L by G का हाफ पावर होगा। तो यहाँ पे 2 पाई, चलो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि 2 पाई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखना होता है? 2 पाई क्या क्या लिखा जाता है फ्रेंड्स? 0. 0। अभी बताया ना मैंने कि कोई भी इक्वेशन में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आता है तो वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। एज इट इज नॉट शोइंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट्स अ डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी 0। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द 2 पाई इज अ 0। चलो अब L बाई जी का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो L का डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो तो लेंथ है, तो लेंथ का तो 1 ही होगा, L 1 ही होगा। एंड G क्या है फ्रेंड्स? G जो है, G क्या है फ्रेंड्स? ग्राम। इट इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये G जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन है फ्रेंड्स। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? L1t minus 2. या सो ग्रेविटेशनल हो या कोई भी हो,
बट एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब L1t-2। तो फ्रेंड्स L1 कैंसिल हो गया, t-2 ऊपर जाएगा तो t+2 होगा, t-2 अगर ऊपर जाएगा तो वो t+2 होगा, और उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो t⁻²/1/2 तो क्या हो जाएगा, t⁻1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 and 2 डेफिनेटली वी कैन से गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली। बताओ वैलिड है कि नहीं वैलिड है? Yes. बताओ फ्रेंड्स, वैलिड है कि नहीं वैलिड है? Valid. वैलिड है, Valid. बट आपको लिखना पड़ेगा कि गिवन इक्वेशन इज अ डायमेंशनली वैलिड। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये डायमेंशनली क्यों लिखना पड़ेगा? ये डायमेंशनली ही वैलिड है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आपको ये कभी पता नहीं चलेगा, आपको ये कभी पता नहीं चलेगा कि ये इक्वेशन वाकई में वैलिड है कि वाकई में नहीं है। ये डायमेंशनली वैलिड है ऐसा ही पता चलेगा। मैं आपको बताऊं, चलो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे t = 2π के बदले π√L/g होता तो वो डायमेंशनली वैलिड होता या नहीं होता? होता। ये भी होता। अगर t = only L/g होता तो ये डायमेंशनली वैलिड होता कि नहीं होता? होता। ये भी होता, ये भी होता। अगर t = π/2 होता L/g तो ये भी डायमेंशनली वैलिड होता। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ना, ये जो मेथड, इसका लिमिटेशन है, ये इक्वेशन एक्चुअली है वैलिड या नहीं है वो नहीं पता करता। ये मेथड खाली वो डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं है वही उसको बता पा रहा है। वो एग्जैक्टली वो इक्वेशन उसी फॉर्म में है या नहीं है वो हमको पता नहीं चलेगा। मतलब इक्वेशन वाकई में, देखो मैं और बताऊं, चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अगर ओके, तो इसका मैंने डायमेंशनल वैलिडिटी चेक किया होता तो वैलिड होता। अगर मैंने कोई आपको ऐसा बोले कि चेक द वैलिडिटी ऑफ k = mv² तो ये भी वैलिड होता। मतलब एक्चुअल फॉर्मूला तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² है, बट डायमेंशनली तो mv² भी वैलिड है। तो मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि ये जो मेथड है वो खाली डायमेंशनल वैलिडिटी ही चेक करता है, एक्चुअल वैलिडिटी वो चेक नहीं कर पाएगा। वो इक्वेशन एक्चुअली वैलिड है कि नहीं वैलिड है वो हम नहीं पता कर सकते, डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं है वही पता कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? क्या फ्रेंड्स ये समझ में आया आपको? यस। तो इसलिए हमको लिखना पड़ेगा बार बार कि डायमेंशनली वैलिड, ऐसा लिखना पड़ेगा। खाली वैलिड है ऐसा नहीं लिख सकते हैं हम। इज दैट क्लियर टू यू? यस। ओके, अब मैं थोड़े इससे उल्टे क्वेश्चन, मतलब इससे अपोजिट टाइप के क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं। सेकंड एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। थर्ड एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकंड एप्लीकेशन, और उससे उल्टे क्वेश्चंस हम अब डिस्कस करने वाले हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ओके, gravitational force between two particle can be given by F = G m1 m2 upon r², where m1 and m2 is a mass, वो दोनों पार्टिकल के मास है, and r is the distance between the particle, distance. And the question is that then find the dimensional formula of constant, dimensional formula of the constant g। तो यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन है।
यहाँ पे वैलिडिटी चेक करने का नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पे आपको डायमेंशनली वैलिडिटी चेक करने का नहीं पूछा है, बट यहाँ पे गिवन बाय का मतलब ऐसा हुआ कि ये डायमेंशनल वैलिडिटी है ही, आपको एक्सेप्ट करना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि ये इक्वेशन वैलिड ही है। और ऊपर से आपको क्या फाइंड करना है, आपको वैलिडिटी चेक नहीं करना है, यहाँ पे जी का मतलब ये जो कांस्टेंट जी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको वैलिडिटी चेक नहीं करना है, वैलिड है ऐसा एक्सेप्ट कर लेना है और उससे उल्टा काम करना है। तो वैलिड तो है ही, ओके, जो इक्वेशन था उसका वैलिडिटी चेक नहीं करना है, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली टेक इट फॉर द ग्रांटेड दैट वो वैलिड ही है। बट यहाँ पे अभी क्या करना है, मुझे कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दो। तो सबसे पहले एक काम करो, जी को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दो। तो क्या हो जाएगा इसका, तो if we make the g subject of equation, it is becomes f into r square upon m1 m2. Is that clear to you? यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? Yes. ओके, तो अब क्या करेंगे हम, अगर g का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा f का लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला का स्क्वायर करना पड़ेगा, पार्टिकल 1 का मास, पार्टिकल 2 का मास, ये दोनों मास ही शो कर रहे हैं। चलो फ्रेंड्स मुझे बताओ कि f का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M1 L2 T minus 2. M1 L1 T minus 2 फ्रेंड्स, 1 1 2 M1 L1 T minus 2। चलो डिस्टेंस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, Meter square. L2, मीटर स्क्वायर मतलब L2, नीचे मास 1 मास 2, तो ये M1 और M2 दोनों मास ही शो कर रहा है। तो M1 का भी मास पावर 1 होगा, M2 भी पार्टिकल 2 का मास ही है तो वो भी मास का पावर 1 ही होगा। M1 भी M2 भी मास है, तो M1 इंटू M1। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो M1 अपॉन M2, नक्शी है वहां पे, नक्शी Yes, sir. बोलो, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या होगा फाइनली। M1. M माइनस 1 बचेगा, बिकॉज न्यूमरेटर में M1 है, डिनोमिनेटर में M2 है, तो M2 ऊपर जाएगा तो M माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 बचेगा। चलो L का क्या होगा, L2. L क्यूब, L1 L2 L क्यूब हो जाएगा, T minus 2. and T minus 2, T minus 2. So finally this will be the answer. तो फ्रेंड्स ये अपोजिट टाइप का क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी वैलिड है, वैलिडिटी चेक नहीं करना था, यहाँ पे वैलिड इक्वेशन के ऊपर से हमको कोई नए क्वांटिटीज, कोई नया कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? Is it understood friends? Yes. 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 तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो मैं यहाँ तक अभी खत्म कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको क्या करवाया, आई एम जस्ट चेकिंग द टाइम, कौन से टाइम ले सकता है वो मैं देख रहा हूँ, बट आज मैंने क्या क्या करवाया फ्रेंड्स? Dimensional validity. आज हमने डायमेंशनल वैलिडिटी का टॉपिक स्टार्ट किया, एंड ओके ये रहा। ओके तो डायमेंशनल एनालिसिस हमने डिस्कस किया। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हमने दो एप्लीकेशन डिस्कस किया, एक तो कोई भी क्वांटिटी के एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, नंबर 1, एंड नंबर 2 वी कैन चेक द डायमेंशनल वैलिडिटी ऑफ द गिवन इक्वेशन।
बट ये सेकंड एप्लीकेशन जो है उसके बेस पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, उससे उल्टे क्वेश्चन है इस टाइप के। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी सेकंड एप्लीकेशन ही डिस्कस करने वाले हैं, एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड एप्लीकेशन एज वेल। अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है, क्या हम उसको वेडनेसडे को रख सकते हैं? अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर वेडनेसडे मॉर्निंग में रखता हूँ, वेडनेसडे ओके, नेक्स्ट सेशन yeah, can I arrange your next session on the Wednesday 1 o'clock? Yes, sir. 1 o'clock को रखता हूँ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? No. No. अभी बता दीजिएगा, अदरवाइज फिर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो। ओके, तो अभी हम कुछ अपने टाइम रेगुलाइज करते हैं। ओके, मंडे भी 1 o'clock ले सकते हैं ना? किसी को मंडे 1 o'clock में प्रॉब्लम है? किसी को? No, sir. No, sir. Monday it is convenient to you, no? 1 o'clock it is, Yes. is it okay? Yes. Okay, Yes. so Monday, Wednesday and ये दोनों आपके टाइम फिक्स है, और एक रखते हैं फ्राइडे का टाइम रख देते हैं। बट फ्राइडे का जो टाइमिंग है आपका, वो रहेगा आपका, फ्राइडे का जो सेशन है उसको हम कर देते हैं क्या मैं फ्राइडे को 5 to 6:30 कर सकता हूँ? Yes. Is it okay to you everybody? Yes. 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 अभी बता दो किसी को प्रॉब्लम हो तो।